أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 15 اگست ہے اور آج ہی کے دن یعنی 15 اگست سن 1947 کو ہمارا یمن انگریزوں کے کنٹرول سے آزاد ہوا. تو آج کی یہ تقریر کوئی دینی یا اصلاحی ہونے والی نہیں ہے، ایک معلوماتی تقریر ہونے والی ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا. اس سے پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہوئے. انگریز ہمارے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ہو رہے تھے اور ہندوستانی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے. اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے یعنی آزادی کی تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے نہایت مختصر طور پر اور چند خاص باتیں ذکر کرتا ہوں. اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ انگلینڈ کے اندر ایک کمپنی قائم ہوئی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا. سن 1599 یا 16 کے اندر اس کمپنی نے دیکھا ہندوستان ایک بہت ہی سرخیز ملک ہے، ہندوستان ایک مالدار ملک ہے. اس وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے اندر بھی اپنا تجارتی مرکز قائم کیا جائے. چنانچہ 1599 یا 16 کے اندر یہ لوگ ہندوستان کے اندر آئے اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر ان لوگوں نے اپنے تجارتی مرکز قائم کیے اور ان کا اصل مرکز کلکتہ کے اندر تھا. شروع میں وہ مظاہر یہی معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہندوستان کے اندر تجارت کرنے کی غرض سے آئے، لیکن اندر ہی اندر یہ اپنی چالیں چلتے رہے اور ہندوستان کو غلام بنانے کی سازش کرتے رہے. چنانچہ ان لوگوں نے اپنے فوجیوں کو بھی دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر داخل کرنا شروع کیا اور ان کی بغاوت اس وقت کھل کر کے سامنے آئی جب 1757 کے اندر ان لوگوں نے نواب سراج الدولہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی. نواب سراج الدولہ نے ان لوگوں کو زبردست شکست دی. تو انگریز یہ سمجھ گئے کہ اس طرح ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے، ہمیں کوئی خفیہ سازش کرنی پڑے گی، کوئی چال چلنی پڑے گی. تو انگریزوں نے نواب سراج الدولہ نے خاص آدمی میر جعفر کو خرید لیا اور اس وقت نے اندر ہی اندر سے سراج الدولہ کی فوج کو خوفلا کرنا شروع کر دیا. 85 کے اندر سن 1799 کے اندر سراج الدولہ اور انگریز کی فوج کے درمیان زبردست جنگ ہوئی. لیکن چونکہ یہ بدبخت جو ہے میر جعفر جو تھا اس نے جو ہے پہلے ہی بہت ساری فوج کو ورنلا کر کے الگ کر دیا تھا اور ایک تھوڑی سی فوج سراج الدولہ کے ساتھ رہ گئی. لیکن سراج الدولہ نے ہار نہیں مانی اور وہ تھوڑی سی فوج کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا. اور پھر سراج الدولہ نے حکم دیا کہ گولے بارود کا استعمال کیا جائے. جب فوجی تہخانے کے اندر پہنچے ہیں، گودام کے اندر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے گولے اور بارود کے اندر کسی نے پانی ملا دیا اور یہ بدبخت کی جو ہے چال. بہرحال سراج الدولہ جنگ ہار گئے اور وہ قید کر لیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. اور جو اس کا خاص آدمی تھا میر جعفر، اس کو کلکتہ کا حاکم بنا دیا گیا یعنی پنجاب کا حاکم بنا دیا گیا. لیکن یہ کہنے کو صرف حاکم تھا، حقیقت میں جو ہے پوری بات دور انگریزوں کے ہاتھ میں. پھر اس کے بعد انگریزوں نے یہ سوچا کہ اب جنوبی ہندوستان کا یعنی دক্ষಿಣ بھارت کا رخ کیا جائے. یہ لوگ جنوبی ہندوستان کے اندر پہنچے اور میسور کے اندر پہنچے. ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں کا بھی حکمراں ہے جس کا نام ٹیپو سلطان تھا، یہ بھی بڑا ہی بہادر شخص ہے. تو ان لوگوں نے ٹیپو سلطان سے جنگ دی، لیکن ٹیپو سلطان نے وہ ایسی شکست دی کہ شاید اس وقت تک تاریخ میں انگریزوں کی ایسی شکست نہیں ہے. انگریزوں نے سوچا کہ یہاں بھی آسانی سے دائیں کرنے والی نہیں ہے. چنانچہ یہاں پر بھی انہوں نے وہی چال چلی کہ ٹیپو سلطان کے خاص آدمی میر صادق کو انہوں نے خرید لیا اور میر صادق نے فوج کو ورگلانا شروع کیا اور بہت ساری فوج کو اپنا ہمنوا بنا لیا. سن 1799 کے اندر انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے درمیان جنگ ہوئی اور ٹیپو سلطان جب اپنی فوج کو لے کر کے نکل رہے تھے تو ابھی آدھی فوج بھی قلعے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اس میر
सादी पे जो है किले का दरवाजा बंद कर दिया और आगे से कम फौज टीपू सुल्तान के साथ जंग लड़ने के लिए गई। लेकिन टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी और उसी जो है थोड़ी सी फौज के साथ अंग्रेजों में मुकाबला करते रहे। आखिर में टीपू सुल्तान ने कहा कि कौन का इस्तेमाल किया जाए। जब फौज जो है बारूद और गोला लेने के लिए तहखाने के अंदर पहुंची है तो यहाँ भी वही चाल चली गई कि तमाम बारूद के अंदर पानी मिला दिया गया, जिसकी वजह से तमाम बारूद खराब हो गया। बहरहाल टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन टीपू सुल्तान जो शहीद हुए हैं तो उस वक्त देखिए उनका इतना ज्यादा खौफ अंग्रेजों के ऊपर था कि अंग्रेज उनके करीब जाने से डर रहे थे। जब उनको मुकम्मल तौर पर ये यकीन हो गया कि टीपू सुल्तान जो है शहीद हो चुके हैं, उनके जिस्म के अंदर जान बाकी नहीं है, तो अंग्रेज हुक्मरान उनके पास पहुंचा और उनके सीने पर कदम रखकर कहा, उनके सीने पर पैर रखकर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब शिमाली हिंदुस्तान का रुख किया जाए। चुनावी ये लोग दिल्ली के अंदर पहुंचे और दिल्ली के अंदर उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम शाह आलम था, जो बहुत ही कमजोर बादशाह था और उसके बारे में ये मशहूर था बादशाही शाह आलम अज़लाइला का पालम, यानी शाह आलम की बादशाही लालकिला से लेकर के पालम हवाई अड्डे तक है। दिल्ली के अंदर एक हवाई अड्डा जिसको पालम कहा जाता है, तो यानी बहुत ही महदूद हिस्से में इसकी हुकूमत थी और बहुत ही कमजोर ये बादशाह था। अंग्रेज जब यहाँ पर पहुंचे तो लोगों ने उस बादशाह को अपनी कठपुतली बना लिया और उस वक्त ऐलान ये किया कि मुल्क खुदा का हुकूमत बादशाह की और हुक्म जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। मैं आज शुरू में उन लोगों ने कठपुतली बना कर उस बादशाह को रखा, लेकिन फिर उसको मासूम करके हुकूमत का कब्जा कर लिया और उसके बाद खून का सिलसिला शुरू किया। दिल्ली के अंदर मुगलों को चुन चुन कर कत्ल किया गया, औरतों को कत्ल किया गया, बच्चों को कत्ल किया गया और दिल्ली के अंदर खून खराबे लायक जो है माहौल करने लग दिया गया। यहाँ तक कि इन लोगों ने दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की रोक लगा दी। 3 साल ऐसे गुजरे हैं कि दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हुई और उन अंग्रेजों ने जो है उसको अपना घोड़ों का अस्तबल और सुअरों का अस्तबल बना दिया था। बहरहाल में दिल्ली में लोगों ने कब्जा कर लिया तो ऐसे नाजुक वक्त में एक मुजाहिद मर्द उठा, एक मुजाहिद मिल्लत उठा जिसका नाम शाह अजीज इब्न वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। इन्होंने हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो अंग्रेजों से जंग करनी होगी, अंग्रेजों से लड़ना होगा। उनका फतवा क्या था? गोया कि इस बिजली पड़ने से दुश्मनों पर गिर पड़ी, हर तरफ से आजादी की सताएं बुलंद होने लगी, हर दिल के अंदर आजादी का वलवला मचलने लगा, हर तरफ आजादी ने परचम लहराने लगे। चुनांचे मुल्क के अंदर में आजादी का जुनून बढ़ गया और हर हिंदुस्तानी के अंदर यही तमन्ना थी और हर हिंदुस्तानी का यही जज्बा था कि हमारा मुल्क अंग्रेजों के तंबू से आजाद हो जाए। तो बहरहाल इस हिंदुस्तान की जंग आजादी में अगर किसी कौम ने सबसे ज्यादा फर्क बहाया है तो मुसलमान कौम है। तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान की जंग आजादी में सबसे ज्यादा फर्क बहाया है। चुनांचे 1857 की जंग आजादी के अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद दिए गए, जिनमें 51,500 उलमाए किराम से सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। सन 1861 ईस्वी के अंदर बर्फक में अंग्रेजों ने 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए, 3 लाख कुरान को नजरियात करके जला दिया और अंग्रेजों का मानना ये था कि मुसलमानों को जो हुर्रियत की और आजादी की तालीम दी गई है वो उनकी किताब कुरान हदीस से दी गई है। ये सोच करके उन्होंने कुरान मजीद को जलाना शुरू किया और 3 लाख कुरान की नुस्खे जला दिए। लेकिन जब अंग्रेजों ने ये देखा कि ये कुरान इस कौम के छोटे छोटे बच्चों के अंदर मौजूद है, छोटे छोटे बच्चों के दिलों के अंदर महफूज है, हम ये ज़ाहिरी कुरान को चला सकते हैं, लेकिन हमको ये कैसे मालूम होगा कि किस बच्चे के अंदर या किस शख्स के दिल के अंदर कुरान मौजूद है। उसके बाद जो हरकत से उन्होंने फाज आए और कुरान को जलाना बंद किया। एक अंग्रेज मुअर्रिख डॉक्टर एडवर्ड टॉमसन लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक ये 3 साल हिंदुस्तान की आजादी के बड़े तारीख साल है, यानी बहुत ही अंधेरे साल है। इन 3 सालों के अंदर अंग्रेजों ने 14,500 उलमाए किराम को शहीद किया है। टॉमसन लिखता है कि उलमाए किराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया। टॉमसन लिखता है कि उलमाए किराम को
सुअर की खाल में बंद करके जलते हुए तंदूरों के अंदर डाला गया। तानसेन लिखता है चौमाए कराम को बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया जाता और उसके ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। तानसेन लिखता है कि मुसलमानों के हाथों और पैरों में रस्सी बांध करके ऊपर से हाथी को चढ़ा दिया जाता था। तानसेन लिखता है कि बाद मुसलमानों को ऐसे भी सजा दी जाती थी कि उनके दोनों पैरों में रस्सी बांध दी जाती और अलग अलग घोड़ों के पैरों में रस्सी बांध दी जाती और दोनों घोड़ों को गोमदरी सिंह में दौड़ा दिया जाता, जिससे उसका जिस्म बीच से फट जाता था। यानी दर्दनाक सजाएं दिया करते थे। जैसी तरह बाद मतलब इस तरह भी सलमान क्या करते थे कि मुसलमान को तोड़ के मुंह पर बांध करके गोले को दान दिया जाता था, जिससे उसका पूरा जिस्म तीसरे की तरह हो जाता था। बहरहाल इस तरह उन लोगों ने बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल किया। और तानसेन कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के पेशावर की जामे मस्जिद तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर उलमाए कराम की गर्दनें न रखती हो। तानसेन कहता है कि उलमाए कराम अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर एक फांसी का फंदा बनाया था, जिसमें एक दिन में 80 उलमाए कराम को फांसी दी जाती थी। बहरहाल एक दूसरा मुआलिफ डॉक्टर विलियम जोर लिखता है कि एक मरतबा में अपने खेमे के अंदर आराम कर रहा था तो मुझे मुर्दाए की बदबू महसूस हुई, तो मैंने बाहर जाकर के देखा तो हजरती फौज उस फरमा को पकड़ करके लाए थे और उनको जला रहे थे और उसके बाद वो तमाम के तमाम जल गए। तो उसके बाद 40 ग्राम को और उठा करके लाए और उनसे कहा कि अगर तुम में से एक मौलवी भी सिर्फ ये कह दे कि हम जंग आजादी में शरीक नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन वो कहता है कि वो 40 के 40 आग के अंदर फंस गए, लेकिन उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि हम जंग आजादी में शरीक नहीं। तो बहरहाल उलमाए किराम ने इस हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया है, बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हकीकत तो ये है कि अगर हिंदुस्तान में जंग आजादी में मुसलमान और खास तौर से उलमाए किराम हिस्सा न लेते तो शायद हिंदुस्तान में अंग्रेजों के तंगुल से आजाद न होता। उलमाए किराम ही ने आजादी की खेती को अपने खून से सींचा है और इसे परवान चढ़ाया। तो अगर गौर किया जाए तो 1757 से 1857 की तक की जो जंग लड़ी है वो सिर्फ मुसलमानों में लड़ी है और उनमें गैरों का जो है बहुत ही कम रोल रहा है। फिर 1857 के बाद से जो जंग लड़ी गई है उसमें मुल्क के दूसरे अपराध भी साथ आए और तमाम हिंदुस्तानी मिल करके, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी थे, तमाम ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और इस तरह कुर्बानियां वो लोग देते रहे, अपनी जानों पे नजराना पेश करते रहे। कभी उनको जो है जेल के अंदर डाला जाता, कभी उनको फांसी के पल्ले में लटकाया जाता, दरस में तरह तरह की उनको तकलीफें दी जाती थी, लेकिन सब कुछ वो बर्दाश्त करते रहे और बराबर आजादी की जंग लड़ते रहे। आखिरकार हमारे बुजुर्गों का यह सपना पूरा हुआ, उनका ये ख्वाब पूरा हुआ और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा ये मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया और हमने आजाद हिंदुस्तान की फिजा में सांस ली। तो कहने का मकसद ये है कि आज हमारी स्कूलों के अंदर, हमारे कॉलेजों के अंदर, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूलों के अंदर जो तारीख पढ़ाई जाती है हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल को जो तारीख पढ़ाई जाती है उस तारीख के अंदर मुसलमानों का कहीं नाम ही नहीं आता, सिर्फ गैरों का नाम आता है, जिससे हमारा नौजवान, हमारा मुस्लिम बच्चा ये समझता है कि हिंदुस्तान की जंग आजादी में हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमने कोई रोल ही अदा नहीं किया है और वो एहसास कमजोरी का शिकार हो जाता है और ये समझता है कि हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने कुछ किया ही नहीं था। तो हमें एहसास कमजोरी का शिकार नहीं होना है, बल्कि हमें की तारीख पढ़नी है, हमें अपनी तारीख को मालूम करना है और ये देखना है कि हिंदुस्तान की तारीख के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी थी, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ था। मगर बड़े ही अफसोस का ये मकाम है कि जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी थी, उसी मुल्क के अंदर आज हमारे साथ दोहरा रवैया तैयार किया जा रहा है। आज इनको दो दर्जे का शहरी समझा जा रहा है और आज हमारे मकाबे के ऊपर, हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारे मदरसों के ऊपर ये गाल ली जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो एक तरह से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों को दो दर्जे का शहरी समझा जा रहा है। तो जब तक इस तरह की ज़हनियत बाकी रहेगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
ہمارا ملک مصیبت میں ترقی کر سکتا ہے جب ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، ہر ایک کو برابری کا حق دیا جائے، ہر ایک کو برابری کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور جو ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔